Good afternoon, everyone. It's already 5 past 12, so sorry for the delay. I am Sanjay Jathar from Medicare's Incubation and Innovation Cell. So I welcome you all to this webinar, which is Principles of Effectuation. So I think this is a word effect which we already listened, but effectuation is a new term for us. So we are here to listen to Professor Ramjanam Singh, who is head E-Cell as well as he is also a member of Mechanical Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering Department. So Medicare, I will briefly introduce about Medicare's University. Uh, Medicare's University earlier was known as Medicare's Institute of Technology and Management, and later on, a new institute was added to it, which was Medicare's Institute of Science and Technology. So MITM, which we know, was introduced in year 2000, and later on MIST, the second institute was added, uh, and in 2015, uh, we got the permission to start the private university, and the first batch of this university was inducted in 2016. So we are now having under university we are having different courses like engineering, management, then pharmacy, BSc, and many more, commerce, and many more courses are there. So Dr. Sunil K. Somani is the founder vice chancellor of this university, and under his guidance, we are conducting different type of programs under incubation and e-cell. So without taking much time, I will hand over to Mr. Ramjanam Singh, who will take up this webinar. And I request all of you to please switch off your mics, and uh, you can ask questions in the chat box, as well as you can interact with him at any time by unmuting your mic. So, Professor Ramjanam Singh, please, I hand over to you. Thank you very much, Jathar sir. Before going to the start the session of principle of effectuation, थोड़ा सा मैं इसके पहले effectuation जो theory of effectuation है उसकी history बताना चाहूँगा. Dr. Saras D. Saraswati, basically she is now professor in Darden School of Business in University of Virginia. और इन्होंने ये थियरी ऑफ एफेक्चुएशन 2001 में दिया था और नियरली इन्होंने 27 एक्सपर्ट इंटरप्रीनर इसमें एक उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एटलीस्ट वो उस इंटरप्रीनर का एटलीस्ट एक आईपीओ हो और 15 ईयर का एक्सपीरियंस होता है. उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव और एम्पिरिकल स्टडी की है. उसके बाद देन वो एक डिसीजन पे आए. उन्होंने एक 5 प्रिंसिपल्स बताए और मेनली उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड की टॉप 18 जो है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर में है बाय फॉर्च्यून स्मॉल बिजनेस मैगजीन. इन्होंने 2 बुक लिखी है. 2008 में इन्होंने एफेक्चुएशन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्सपर्टाइज, एंड 2010 में अगेन इन्होंने एक और बुक लिखी है जो बेस्ट सेलर है, एफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप. इनकी जो स्टडी थी उस स्टडी में बेसिकली इन्होंने 2 शर्तें थी. एक तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस और एक वर्ड यूज होगा यहाँ पे इन ईच स्लाइड ऑलमोस्ट, एक्सपर्ट इंटरप्रेन्योर. एक्सपर्ट इंटरप्रेन्योर का इन्होंने एक डिफिनीशन ये रहता था कि शायद ही कोई ऐसा इंटरप्रेन्योर होगा जो कभी अनसक्सेसफुल ना हुआ हो. इसलिए उन्होंने वर्ड सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप न रख के एक्सपर्ट इंटरप्रेन्योरशिप रखा. एंड उनका एटलीस्ट एक आईपीओ उनका होना चाहिए. और उनकी स्टडी में 2-3 चीज़ें और उन्होंने ऐड किया था
उन्होंने नियरली 17 पेज के सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिए थे उन लोगों को, और उन्होंने उसके आंसर दिए थे, और नियरली 65% जो है उनको जो रिस्पोंडेंट आया उसमें दे आर यूजिंग द एफेक्चुअल लॉजिक। और एफेक्चुअल लॉजिक क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं कि नाम। तो फर्स्ट एक वर्ड जो है एफेक्चुएशन, इसमें दो तीन तीन चार इसमें डेफिनेशन हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन मैंने कुछ इसमें यूज किया है। द फर्स्ट वन इज द एफेक्चुएशन इज द वे ऑफ थिंकिंग which include a set of decision-making principles that expert entrepreneurs employ in situation of uncertainty. एक्चुअली किसी भी इंटरप्रेनर के लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है कि अनसर्टेनिटी ना आए, कंटीजेंसी ना आए। तो बेसिकली ये जो 5 प्रिंसिपल है, दिस इज नथिंग बट इट्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। और ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रिंसिपल को लेके और वी स्टार्ट द वेंचर, नहीं, हमें पांचों को ईच एंड एवरी प्रिंसिपल जो है अगर देखा जाए तो लिंक टू द ईच अदर, एंड हम पांचों को एक साथ ही हमें लेना है। सेकेंड वन, द effectuation is an idea with a sense of purpose, a desire to improve the state of world and the life of individuals by enabling the creation of firms, creation of products, market, services, and ideas. The third, effectuation research has found that there is a science to entrepreneurship, and that a great entrepreneurs across the industries, geographic, and time use a common logic। यहाँ पे एक वर्ड है, यूज अ कॉमन लॉजिक और थिंकिंग प्रोसेस टू सॉल्व द इंटरप्रेन्योरल प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट वन इज effectuation is a logic of entrepreneurial expertise that both beginner and experienced entrepreneurs can use in the highly unpredictable startup phase of a venture to reduce the failure cost for the entrepreneur। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कहीं ना कहीं दे आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द इंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं कि व्हाट इज द एफेक्चुएशन। दिस इज नथिंग बट, अगर देखा जाए एक सेंटेंस में इसका, वर्क विथ व्हाट ऑलरेडी विद इन योर कंट्रोल टू को क्रिएट द फ्यूचर। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो व्हाट इन व्हाट्स ऑलरेडी विद इन योर कंट्रोल, व्हाट्स विद इन योर कंट्रोल मीन्स दो तीन चीजें हमारे उसमें कंट्रोल में होती हैं, वो इन प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा ये। अगेन थोड़ा सा डिफिनेशंस पे जाते हैं कि डिफिनेशन नथिंग बट ए लॉजिक थिंकिंग दैट यूनिकली सर्व द एंटरप्रेन्योर इन स्टार्टिंग द बिजनेस, and it's provide a way to control a future that is inherently unpredictable। आप सबको पता है कि फ्यूचर जो है अगर देखा जाए ना तो हमारे कंट्रोल में है और ना तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी आपने देखा कि अगर मार्च 2020 से लेकर और अभी तक जो हमारा पैंडेमिक एरा है, इसमें किसी ने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड में इतना बड़ा वो हो जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल्स में लूंगा धीरे धीरे कि ईच एंड एवरी प्रिंसिपल्स में कैसे इसने इफेक्ट किया। और नो डाउट अगर देखा जाए तो अगर मार्च में देखा जाए तो इंडिया में शायद ही कोई मास्क या कोई प्रोटेक्टिव किट्स या फिर वेंटिलेटर या ऐसा कुछ था, लेकिन विद इन ए मंथ अप्रैल मई तक आते आते जो है हम एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। तो कैसे उस कंटीजेंसीज के समय में यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और इमीडिएट जो है, जिसमें कि महिंद्रा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने उस कंटीजेंसीज के माहौल में अपने आप को कंटीजेंसीज को लिवरेज किया अगर देखा जाए तो।
And what does effectuation do basically? This is nothing but a effectuation advances the idea towards sellable product and services with proven customer. बेसिकली अगर देखा जाए तो एफेक्चुएशन के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो किसी भी व्हीकल के फर्स्ट एंड सेकंड गियर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एफेक्चुएशन के प्रिंसिपल्स को अगर हम इनका इनकलकेट कर लें अपने उसमें तो और हम एक सक्सेसफुल या एक एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और हमारा वेंचर सक्सेस हो जाएगा। नहीं, दिस इज ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड गियर। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है आपको अपने हार्डवर्क से और अपनी यू कैन से दैट एक्सपर्टाइज या अपनी स्किल से आपको आगे ले जाना है उस पूरी व्हीकल को। अगेन स्टेक होल्डर्स के क्या कमिटमेंट होते हैं अगर देखा जाए इन केस ऑफ एफेक्चुएशन। बेसिकली यूजिंग एफेक्चुएशन द एंटरप्रेन्योर इंटरेक्ट इन सर्च ऑफ ए सेल्फ सेलेक्टिंग पार्टनर टू को क्रिएट द वेंचर। सेल्फ सेलेक्टिंग इसलिए बोला गया है कि इसका जो सेकंड प्रिंसिपल सॉरी थर्ड प्रिंसिपल जो बोलता है विच इज नोन एज ए पैचवर्क किल्ट, आप खुद सेलेक्ट करते हो अपने पार्टनर्स को। कोई मतलब कोई पार्टनर ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में सर्च, आपको जिस चीज की एक्सपर्टाइज नहीं है वो आपको सर्च करके और उसके साथ पार्टनरशिप करके एंड देन यू start the journey. Then next one is expert entrepreneurs use a set of techniques that serve as a foundation for making decision about what to do next. थोड़ा सा ये मैंने ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि बेसिकली कि effectual logic is like a first and second gear. You need them to start your business, but eventually you shift away from the effectual logic. क्या effectuation is nothing but a क्या it's thinking framework, no doubt, a set of heuristics, doing the doable। मतलब इसमें इसमें यही है कि जो चीज आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, आप वही करो। नो नीड कि आप बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो है एफर्ट लगाओ। नहीं, डूइंग द डूएबल एंड हाउ टू गेट द सेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस एस्टेब्लिश। अगर नॉर्मली ऐसा नहीं था कि 2001 के पहले कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हुआ या वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन वो जो साइंटिफिक मेथड था उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि नो डाउट इसमें मतलब इफ वी फॉलो द दीज प्रिंसिपल्स देन वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फेल्योर। Effectuation is not a system tell what to do, an algorithm, the not planning a way to launch an entire business। अगर नेक्स्ट चला जाए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एफेक्चुएशन पे। बेसिकली एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स हैव लर्न ए हार्ड वे दैट द मोस्ट interesting ventures are built in a space in which the future is not only unknown but unknowable। ये सबको पता है कि किसी कोई भी प्रोडक्ट कितना भी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट हो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट जो है हमारा जो है, इवन आपके पास अगर मोनोपोली भी है तो भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्हें आने वाले 2 साल 4 साल या 10 साल तक मेरा प्रोडक्ट चलेगा और कोई इसका कंपटीटर नहीं आएगा, या कंपटीटर आए भी तो भी मेरा प्रोडक्ट जो है ब्लॉकबस्टर रहेगा। नहीं होता। और कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल चीजें भी हो जाती हैं। लाइक एक एग्जांपल हम मैकेनिकल के हैं तो थोड़ा ऑटोमोबाइल से जाएगा। एक एग्जांपल आप सबको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2002 में अपनी स्कॉर्पियो प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उसमें नो डाउट काफी इंटीरियर काफी एक्सटीरियर चेंजेस करता गया, फेसलिफ्ट मॉडल आते गए, इवन उसमें हाइब्रिड इंजन भी लाया, बहुत सारे चेंजेस किए। लेकिन जो कंप्लीट आउटर था वो अब जाके चेंज कर रहा है और मे बी मई या जून 2021 में वो लॉन्च करेगा। शायद महिंद्रा को भी नहीं पता होगा कि मेरा 2002 से लेकर मतलब नियरली 18 ईयर्स इसका प्रोडक्ट चला। सेम अगर एक और एग्जांपल ले लें तो मारुति की 2005 में उसने स्विफ्ट लॉन्च की और जाके 2018 में
चेंजेस हुए, उसमें भी वही कॉस्मेटिक चेंजेस आए, इंजन सेम था, सब कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो फेसबुक मॉडल आए। तो कभी कभी चीजें एक और एग्जांपल इसमें देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो शायद आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि अरे सॉरी, मोबाइल फोन और लैंडलाइन फोन के बीच में एक प्रोडक्ट आया था विच इज नोन एज ए पेजर। और नॉर्मली वो सेल्समैन के लिए यूज होता था कि अगर आपको उनको कोई मैसेज देना रहता था तो उसमें वो अपने लैंडलाइन फोन से, लेकिन वो प्रोडक्ट इंडिया में या वर्ल्ड में कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। तो चीजें ऐसी भी होती हैं, जबकि हो सकता है कि उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन आई, लेकिन मोबाइल फोन और पेजर के बीच में काफी समय था, फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं चला। तो यहाँ पे यही है, हम डायरेक्टली वी गो फॉर ए फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिकली दीज आर द प्रिंसिपल, इनके नाम थोड़े से मतलब ये रिसर्च जो है यूएस में हुई तो थोड़ा सा उनका वो टच दिया गया, लेकिन हम उसको इजीली समझ सकते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज ए बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड मीन्स स्टार्ट विथ योर मीन्स आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपकी जो स्किल है, आपके जो नेटवर्क है, उसको यूज करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। लाइक आप सबको पता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस में भी फेसबुक, अमेजोन और छोटे छोटे, कोई गैरेज से स्टार्ट हुआ तो कहीं, इवन डेल का भी आप सबको पता है कि डेल ने भी असेंबलिंग स्टार्ट की थी, और देन जो है आज के डे में आप देखो तो डेल डेल का जो लैपटॉप है या पीसी है कितना आगे गया। तो सब चीज ऑलमोस्ट, आप किसी की भी स्टोरी आप सुनोगे कि तो उसमें यही होता है कि एवरीवन इज स्टार्ट विथ योर मीन्स आपके खुद के रिसोर्सेज, आपकी खुद की स्किल से स्टार्ट करना है। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज नोन एज ए अफोर्डेबल लॉस। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि फोकस ऑन द डाउन साइड रिस्क, मीन्स कि आप जो है किसी भी, मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उतना ही पैसा लगाओ कि अगर वो फेल हो जाए तो उस जो लॉस होगा उसको आप अफोर्ड कर सकें। इसको मैं जब एलोबरेट करूंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको। And the third one is known as a lemonade, which is nothing but a known as a leverage contingencies. Lemonade is nothing but a, normally बोला जाता है कि when life throw lemons at you means it's a situation of contingency। तो उस समय क्या करो, मेक लेमनेड, मतलब वो आप लस्सी बना लो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें कि अगर आप देखना है कि बहुत सारे एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स में कंटीजेंसीज के समय, मैं एक इस पे अभी नहीं, मैं बाद में जब इसको एलोबरेट करूंगा तो एग्जांपल दूंगा, लेकिन अभी टाटा नैनो की ही बात कर लें। अगर टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो टाटा नैनो, आप सबको पता है कि उसने स्टार्ट कैसे किया था और क्या क्या प्रॉब्लम सिंगूर में आई, एंड देन जो सानंद में आके अपने प्लांट को स्टार्ट किया और उसको प्रोडक्ट मार्केट में लाने में लगभग 1 से 1.5 साल लेट हो गया अपने प्रोडक्ट को लाने में। प्लस कुछ उसकी मार्केटिंग वो हुई कि कार फॉर ए कॉमन मैन, मतलब या कॉमन मैन से भी नहीं, वो उसमें सीधे सीधे कहीं निकल के ये आता था कि ये गरीबों की कार है, तो लोगों ने फिर सोचा कि मैं कार भी लूं और गरीब भी कहलाऊं, इससे बेहतर है। तो धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं मार्केटिंग ये हुआ। और रतन टाटा ने बोला था कि मैं 1 से 1.5 साल मेरा प्रोडक्ट लेट हुआ। अगेन अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम थी। आप सबको पता है कि जितनी भी हैचबैक हैं वो सब फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, वो जो है रियर व्हील ड्राइव हुई। प्लस थोड़े से इंजन में उसने 2 सिलेंडर का इंजन लगाया। नॉर्मली 2 सिलेंडर इंजन जो है 660 सीसी में रहेगा, तो थोड़ी सी वो नॉइज आती है, आपको पता है। अगर वही 800 में आप देखिए तो 3 सिलेंडर का इंजन होने के कारण चीजें थोड़ी सी वो लगती हैं। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का यही है कि आप यू लिवरेज द कंटीजेंसी। देन फोर्थ वन इज द पैचवर्क क्विल्ट। पैचवर्क क्विल्ट बेसिकली ये बोलता है कि जब आप जो चीज की स्किल आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप उससे पार्टनरशिप कर लो। पैचवर्क क्विल्ट का
अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडियन मीनिंग वो यही है। आप सबको पता होगा कि अभी तो नहीं, आज के दिन में लोग नहीं यूज करते हैं। आज से 50 साल पहले जो है घरों में जो है एक क्विल्ट होती थी जो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बनती थी। तो हमारे दादी लोग वो बनाते थे। वहां पे भी यही, इसका यही मीनिंग है बेसिकली कि फॉर्म द पार्टनरशिप। एंड देन फिफ्थ वन इज नोन एज ए पायलट इन द प्लेन, मीन्स कि कंट्रोल वर्सेस प्रिडिक्ट। मीन्स आप अगर फाउंडर हो उस पर्टिकुलर वेंचर या स्टार्टअप के, तो आपको स्टेयरिंग अपने हाथ में रखनी है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा जब इस पे एलाबोरेट करूंगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और वो हुआ है। Bird in hand means when expert entrepreneurs set out to build a new venture, they start with their mean। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली तीन इसके वो आते हैं। हु आई एम मीन्स, मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ। हु आई एम मीन्स माई क्वालिटीज, टेस्ट एंड एबिलिटी। एग्जाम्पल लाइक आपके पास कौन सी क्वालिटी है, क्या आपकी एबिलिटीज है। लाइक ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, गो गेटर, एम्पैथी, एबिलिटी टू गेट अलोंग विद द पीपल। अगर ये चीजें हैं, ये अगर देखा जाए तो ये हमारी पहली मीन्स है। मतलब मेरे अंदर क्या है, मतलब अगर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एंड देन सेकंड वन इज व्हाट आई नो, मीन्स माई एजुकेशन, माई ट्रेनिंग, मेरा एक्सपर्टाइज क्या है एंड एक्सपीरियंसेस क्या है। लाइक जो भी, मतलब जो भी स्किल है, इसमें भी है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कोडिंग है, ड्राइंग है, म्यूजिक डिजाइनिंग है, मैकेनिकल डिजाइनिंग, जो भी चीजें हैं। एंड द थर्ड वन इज नोन एज हुम आई नो, मेरा सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क क्या है। क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो जो फर्स्ट 50 एंड 100 कस्टमर्स होते हैं, वो याद रखना आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली एंड आपके रिलेटिव्स ही रहते हैं। अगर वो उनके लिए यूजेबल, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उनके यूज में नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली विच इज नोन एज ए अर्ली एडाप्टर, जो पहले आपके फर्स्ट 50 एंड 100, और ये होता है लास्ट, अगर आप लोगों ने लास्ट वेबिनार में यही सुना होगा कि आपको जो पहला कस्टमर जो है वो जो है वो खोजना सबसे बड़ी बात होती है। तो एक बार जो है फर्स्ट कस्टमर आ जाए, तो यहाँ पे मेनली मैं फिर से पीछे आता हूँ। Who I am, what I know, and whom I know. You already discussed. Then the entrepreneurs imagine the possibility that originate from their means. मीन्स अगर डेल का जो फाउंडर था उसको पता था कि मैं टाइप पीसी कैसे असेंबल कर सकता हूँ, जबकि आपको पता होगा वो मेडिकल का स्टूडेंट था। उसको था, वो हॉबी थी, उस अपने उसने अपने हॉबी या अपने पैशन को और उसको लेके वो चला, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री, आपको पता है। सेकेंड वन इज नोन एज ए अफोर्डेबल लॉस, मीन फोकस ऑन डाउन साइड। डाउन साइड मीन्स यहाँ पे हमें अपसाइड रिस्क पे फोकस नहीं करना है। डाउन साइड रिस्क मीन्स कि कितना मिनिमम। बेसिकली यहाँ पे यही है कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स limit the risk by understanding what they can afford to lose at each step। each step का यहाँ ये मतलब है कि देयर इज ए प्रोसेस कि आइडिएशन से प्रोटोटाइप के बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी। इवन कभी कभी होता है कि आपने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मतलब जो है मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि बहुत साल मतलब अपनी ऑटोमोबाइल कंपनियां अगर हैं तो अपने कंसेप्ट मॉडल को लॉन्च करती हैं और दिखाती हैं और फीडबैक लेती हैं अपने उनके पोटेंशियल कस्टमर से। लेकिन उसके बावजूद भी वो रेडी टू प्रोडक्शन मॉडल तक आते आते काफी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड। तो यहाँ पे भी यही है कि हमें ईच एंड एवरी स्टेप पे हमें ये देखना है कि हम कितना जो है अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना है, अगर हम वो हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग द लार्ज all or nothing opportunity, they choose goal and action where there is upside even if the downside end up
happening. इसका मैं एग्जांपल लूंगा आपको, जब यहाँ मैं ब्रीफली बता रहा हूँ. एंड द सेकेंड वन इज नोन एज ए lemonade. Lemonade means leverage the contingencies basically. An expert entrepreneur invite the surprise factor. हमेशा देखना, अगर देखा जाए तो ये जो पैंडेमिक एरा था पिछले मार्च से लेकर और अभी तक चल ही रहा है, कितने सरप्राइजेस जो है अगर देखा जाए तो आया होगा एंटरप्रेन्योर्स के. अगर मैं एग्जांपल दो तीन सरप्राइजेस दो तीन उससे लिया जाए तो देखा जाए तो पहला सरप्राइजेस ये है, आप जूम को सबसे बड़ी सरप्राइज क्या हुई कि ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि मार्च में जून में नियरली 1,83,000 इंटरप्राइज कस्टमर्स, हम लोगों जैसे नहीं, हम लोग जूम को नॉर्मली पे नहीं करते हैं, हमारा वो है 1,83,000 इंटरप्राइज कस्टमर्स जो है मार्च क्वार्टर में उसने ऐड किया, और उसकी जो ग्रोथ रेट थी ईयर टू ईयर कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स में नियरली 353.7% थी. इसके जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए तो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल, अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल की बात करें तो कमर्शियल तो एक ऑलमोस्ट जीरो के, मार्च से अगर देखा जाए आप सेल्स निकालो तो मार्च से लेके अगर जून जुलाई तक, जून क्या मतलब मे बी से अप टू अगस्त सितंबर तक मिनिमम सेल्स थे क्या. लेकिन क्या किया कि कमर्शियल व्हीकल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल ने उसमें बहुत सारे अपने वो किया. और आज के दिन में इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो महिंद्रा ने अपनी नई थार निकाल दी, और वो नियरली आज के डेट में 5 to 9 मंथ की वेटिंग चल रही है उस प्रोडक्ट पे. सेम यही चीज किया ने अपनी एक नई 5 सीटर बी सेगमेंट की एसयूवी निकाली, उसके साथ भी 1 to 2 मंथ की वेटिंग है. हुंडई ने अपनी न्यू i20 निकाली है, अगेन उसका भी 2 मंथ की वेटिंग. क्यों ये वेटिंग क्यों आ रहा है? एक तो यह इस पर्टिकुलर समय में लोगों ने व्हीकल नहीं ली थी, प्लस ड्यू टू कोविड-19 लोग जो है अब अकेले वो अकेले सफर करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी अभी भी अब स्टार्ट होना शुरू हुआ है कि लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ. तो अचानक ये पैसेंजर कार में, इवन टू व्हीलर आल्सो, टू व्हीलर्स में भी सेम ऐसे ही टू व्हीलर और पैसेंजर कार में काफी ग्रोथ हुई. तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे कि कैसे जो है एक्सपर्ट इंटरप्रेन्योर जो है बैड न्यूज एंड सरप्राइजेस को अपने पोटेंशियल क्लू और न्यू मार्केट में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेट, कि मतलब कंटीजेंसीज के समय आप जो है उसको लिवरेज करो और कुछ नया सोच के नया प्रोडक्ट लाओ, और देन आपका प्रोडक्ट न भी कैसा हो ही नहीं सकता है. द फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल इज नोन एज ए पैचवर्क फील्ड. वी ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने बताया था. बेसिकली एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड द पार्टनरशिप विथ सेल्फ सेलेक्टिंग स्टेक होल्डर. सेल्फ सेलेक्टिंग का वो इसका मतलब यही है कि जिस चीज की आप खुद सेलेक्ट करते हो अपने पार्टनर को, कोई आप पे थोपता नहीं है. और क्यों खुद सेलेक्ट करते हो? क्योंकि पता है कि मैं इस फील्ड में बेहतर हूँ, ये फील्ड में मैं लैकिंग हूँ. मान लो मैं मैकेनिकल का हूँ, तो मेरी अगर फील्ड है, ठीक है, मैं डिजाइनिंग करके मैं प्रोडक्ट को जो है प्रोटोटाइप फेज तक ला सकता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, लेकिन समवेयर वी आर लैगिंग इन ए फिनेंस. देन क्या करूंगा मैं? या तो मैं किसी सीईओ को या कोई ऐसा आदमी जो हमारा फिनेंस में, उसको मैं अपना को फाउंडर बना दूंगा, वो मेरा फिनेंस मैनेज करेगा. अगर मेरे को मार्केटिंग इसके लिए वो ऐसी नहीं आती है, देन वी गो फॉर ए कोई ऐसा मार्केटिंग जो हमारा सीएमओ का काम करेगा, और वो मार्केटिंग या सेल्स पूरा देख लेगा, क्योंकि आई एम बिजी विद द प्रोडक्शन और डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ऐसा
तो पैचवर्क गिल्ड यही बोलता है बेसिकली कि विथ सेल्फ सेलेक्टिंग स्टेक होल्डर बाई ऑब्टेनिंग प्री कमिटमेंट फ्रॉम दीज की पार्टनर अर्ली ऑन इन द वेंचर, expert reduce the uncertainty and co-create the new market with its interested participants. तो आपके साथ और हुआ था इस पे एक मैं बोलना चाहूँगा कि आप सबको पता है रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स वाला, उसको अपना को फाउंडर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था और नियरली जो है वो 130 लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं बोल सकते हैं, लोगों के साथ बात किया, अपनी स्टोरी सक्सेस मतलब अपनी जो उसका बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस प्लान, उसको डिस्कस किया। लेकिन जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा वो आपका को फाउंडर कैसे बनेगा। लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि 23 इयर्स का एक लड़का इतना बड़ा प्लान लेके कैसे चल रहा है, तो लोगों को थोड़ी ट्रस्ट कम आई है। उसने बताया है, उसने बोला है कि मुझे पहला जो अपना को फाउंडर ढूंढने में उतनी मुश्किल, जितनी मुश्किल हुई उतने मुझे कस्टमर ढूंढने में नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज पायलट इन द प्लेन, कंट्रोल वर्सेस प्रेडिक्ट। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैंने आज कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बनाया वो अगले 4 महीने या 6 महीने तक चलेगा, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटी विद इन देयर कंट्रोल, expert entrepreneurs know their actions will result in the desired outcomes. An effectual world view is rooted in the belief that the future is neither found nor predicted, but rather made. मतलब आप न प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को, उसे आप फ्यूचर को बना सकते हो। अब आता है थोड़ा सा, मैं एक एक को फिर से एलोबरेट करूंगा यहाँ पे एंड देन जो है चीजें आप लोगों को, अगर किसी को भी कुछ भी हो बीच में तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो और या फिर अपना रेज हैंड करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल में 3 मैंने चीजें बोली थी, हु आई एम, व्हाट डू आई नो एंड whom डू आई नो। इसको मैंने एलोबरेट भी कर दिया था। यहाँ पे एक चीज है, देखिए ये बोला एक्सपीरियंस इज द सम ऑफ ऑल द मिस्टेक मेड, मीन्स इतना अगर देखा जाए तो फेसबुक हो, गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या जितने भी आज के दिन में अमेजोन हो, ये लोग नियरली, फेसबुक का एग्जांपल दूं तो ये फेसबुक ये बोलता है कि हम ईयरली नियरली 10,000 एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। मतलब 10,000 एक्सपेरिमेंट जो है ईयरली करते हैं। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक आज के डे में अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो कुछ करना बंद कर दिया, उसको पता है कि अब चलता रहेगा मेरा, नहीं। अब वो एक्सपेरिमेंट किसके बेस पे, वो उनके पास भी फीडबैक के वो रहते हैं, फीडबैक लेता है एक्सपेरिमेंट। और हर एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस ही हो जाए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करता है, सिर्फ ये कि जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर हैं या मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो है वो बने रहें, जो पोटेंशियल है वो अंदर मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो और वो एक्सपेंसेस कब आएगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ पे भी ये होता है, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो स्टार्टअप और ये वेंचर वाला, ये जो मतलब देखा जाए तो नॉर्मली इसमें भी फेल्योर रेट आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फेल्योर क्यों बताऊं। एक चीज आपको पता होगा कि फेल्योर होने के बाद भी आप एक्सपेरिमेंटेशन अगर बंद नहीं करते हो तो कभी न कभी तो सक्सेस होना ही है। बस यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, अपने एथिक्स पे रहना है एंड फॉलो द दीज प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे भी यही है, एक वर्ड इसमें है कि स्टार्ट विथ हु यू आर, व्हाट यू नो एंड whom you know, and not necessarily with the predetermined goal or a pre-envisioned opportunities। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज नथिंग बट ए बर्ड इन हैंड।
ये चीज मैं ऑलरेडी बता दिया था मैंने, इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं अगेन ऐड कर देता हूँ कि यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मीन्स, ऐसा नहीं कि किसी एक, तीनों को एक साथ आपको यूज करना है। यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मीन्स द एंटरप्रेन्योर बिगिन टू इमेजिन द पॉसिबिलिटीज एंड टेक एक्शन। मतलब आपके पास क्या क्वालिटीज है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क क्या है, इन सबको आप एक बार एसेस करो। एसेस करने के बाद देन जो है आप फिर आप क्या स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें यही है कि मोस्ट ऑफन, इसने बोला है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करें कि मोस्ट ऑफन he and she start very small with a closest need। आप स्टार्ट, हमेशा शुरुआत जो है बहुत छोटी चीज से होती है। और हमेशा आप देखना कि कोई ट्राई करो कि कोई भी प्रोडक्ट आप मास मार्केट में या एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च ना करो, उसे नीश मार्केट में, नीश मार्केट मीन्स एक ऐसे अपने खुद की मार्केट बनाओ जहां पे आपको मिनिमम या कोई आपका कंपटीटर ना हो। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया, मिनिमम जहाँ कंपटीटर थे, एंड देन जो है वो धीरे धीरे चीजें एक्सपेंड होती गई और देन वो मास मार्केट में आ गए। एक एग्जांपल, इस एग्जांपल से चीजें आप लोगों के बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली बर्ड इन हैंड होता क्या है। आलिया runs a catering service from home which is doing well, and she want to expand her business and look for a commercial space, but she cannot afford the rent। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? एक कमर्शियल स्पेस चाहिए, उसने स्टार्ट किया था अपना कैटरिंग का बिजनेस। सो शी स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। अपने मीन्स मतलब उसके जो इंटरनल रिसोर्स है, मतलब यहाँ तक, यहाँ पे ये बोला जाता है नॉर्मली इस इंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में कि अगर आपको लोन भी लेना है तो लोन अपने पेरेंट्स से लो, अपने फ्रेंड से लो, अपने रिलेटिव से लो, क्योंकि वो लोग आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, इसके एग्जांपल हैं कि जिनको फंडिंग मिलती है लेकिन वो नहीं लेते हैं। आप सबको पता है कि फंडिंग मिल जाएगी, देन क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना है। उसका मैं अफोर्डेबल लॉस पे एक केस स्टडी बताऊंगा आप लोगों को, उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैफे कॉफी डे का, कि क्यों नहीं लेना चाहिए फंडिंग। जब तक जो है आपका 2 या 3 साल आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है बेहतर ना हो जाए, या फिर आपकी बैलेंस शीट बेहतर ना हो जाए, या फिर आपकी ग्रास मार्जिन, प्रॉफिट ग्रास मार्जिन बेहतर ना हो, तब तक अनऑर्गेनाइज एक्सपेंशन आपको नहीं करना है। आपको जहां हो वहीं रहो। तो उसने यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि विच एफेक्चुएशन प्रिंसिपल इज आलिया निग्लेक्टिंग। उसने क्या वो किया है, वो एक्सटर्नल फंडिंग के लिए देखने लगी। मीन उसने बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, मतलब अपने खुद के जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे उससे हट गई वो कि मतलब वो एक्सटर्नल फंडिंग के लिए गई, इसलिए शी इज निग्लेक्टिंग द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल। चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी अभी तक आप लोगों की बर्ड इन हैंड क्या है। सेकेंड वन इज द अफोर्डेबल लॉस। या फिर जैसे एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस है विच इज इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मीन्स अगेन वही कि आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जो कि आप अफोर्ड कर सको उसको, अगर आपको लॉस हो जाए तो। इसको वो करने के बाद मैं दो आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है बेसिकली अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल। You can minimize the risk of a project by only investing what you are willing to lose, rather than focusing on what can be achieved if the project succeeds। मतलब ये सब सोचना कि नहीं जब मैं प्रॉफिट में आऊंगा या मेरा
इतने ज्यादा वो हो जाएंगे तो उस समय मैं इसको भर दूंगा, अभी हम ये लोन ले लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है उस वेंचर में या उस स्टार्टअप में या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कि जितना आप लूज करो तो आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर कोई फर्क नहीं। You should therefore practice how to make decision and perform action where you can manage the potential loss if your action do not get the expected outcome. मैक्सिमम चांसेस रहता है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग में, और अनएक्सपेक्टेड भी मिलते हैं, जो मैंने एग्जांपल जूम का दिया था कि इस पैंडेमिक एरा में पूरे वर्ल्ड की सभी कंपनियां जो है उनके शेयर जो वो हो रहे थे, लेकिन ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो ये भी एक स्टार्टअप है, और आज के दिन में इसकी आप कहानी देखो तो पिछले मार्च से इसका पूरा फॉर्चून ही चेंज हो गया है। So, according to the effectuation logic, you can maintain control by taking a small step in one direction instead of working toward long-term goal and unpredictable outcome. मतलब ये नहीं कि कल क्या होगा उसमें नहीं, आप जो है आप टेकिंग ए स्मॉल स्टेप इन, एक ही डायरेक्शन में और छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ो। ऐसे नहीं कि एक ही बार जो है बहुत बड़ा स्टेप ले लिया जो कि, so by approaching the decision making this way, you can avoid the investing time or money that you are not actually willing to do. ये चीजें अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैलकुलेट द अफोर्डेबल लॉस, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि एस्टिमेटिंग व्हाट इज अफोर्डेबल डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेंचर but varies from entrepreneur to entrepreneur and even across his or her life stages and circumstances. हाँ, बहुत लोगों को पता होगा, मतलब स्टूडेंट्स को इसलिए मैं थोड़ा सा कि इन लोगों की थोड़ी एज कम है कि स्टार्टिंग के जो है 3 साल जो है जब टाटा ने अपना तनिष्क का बिजनेस वो स्टार्ट किया था तो उसकी एचएमटी की जो वॉच थी उसी कंपनी में वो तनिष्क की ज्वेलरी बनाता था बैंगलोर में, और उसके पास हमेशा जो है वो जो एरा था उस एरा में ये था कि हर घर में अपना खुद के लोगों के सुनार होते थे जो कि मतलब ट्रेडिशनली अपने दादा और परदादा के जमाने से चले आ रहे थे, उन पे लोगों का ट्रस्ट था। जो भी आप गोल्ड की ज्वेलरी लेते थे उनसे जाके लेते, उनको ट्रस्ट था। अब तनिष्क का आया, तनिष्क आप सबको पता है कि ब्रांडेड ज्वेलरी का अगर पहला वो है, पहली कंपनी जो इंडिया में स्टार्ट किया उसने, लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि मार्केट से मैं सोना कैसे ले लूं, और वो पेपर पे एक बिल देगा, कैसे पता कि मैं हजारों लाखों के सोना लेके, और मैं तो वो कंटिन्यूअसली जो है उसका जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था, और टाइटन जो है का जो मालिक था वही उसको, सॉरी मालिक कर रहे हैं जीएम या सीईओ जो भी हो, वो अपना बार बार अपनी बैलेंस शीट बताया कि सर इसमें इतना लॉस हो रहा है, टाटा फिर भी बोला कि नहीं इसको चलने दो, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन में ब्रांडेड ज्वेलरी में तनिष्क या फिर बाकी और कितने मार्केट प्लेयर आ गए हैं, और इन्होंने आज के दिन में ये कंडीशन आ गई कि लोग इमीडिएट जाते हैं मार्केट में खरीद लेके आ जाते हैं। तो ऐसे चेंज होते हैं। तो by allowing the estimate of the affordable loss to drive their decision about which venture to start, effectuators do not need to depend on any prediction. किसी को भी किसी प्रिडिक्शन पे नहीं होना चाहिए कि आने वाले एरा में ऐसा होगा तो मेरा ये प्रोडक्ट या मेरी ये जो सर्विस है चल जाएगी, नहीं। तो टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न we have to estimate the future sales and possible risk that continue to our cost of capital, and then raise enough money to make the venture happen. ये आपको ध्यान रखना है। To calculate the affordable loss, all we need to know is our current financial condition. उस समय उस पर्टिकुलर समय में आपकी करंट फाइनेंशियल
कंडीशन क्या है, एंड ए साइकोलॉजिकल एस्टिमेट ऑफ अवर कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मैं वो टाटा का नैनो वाले प्रोजेक्ट की बात उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था, मैं दूसरे उसमें आ गया था। उसमें यही था कि नैनो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा जो है आप सबको पता है लॉस में गया, लेकिन क्या किया उसने, स्मार्टली जो है उसी कंपनी को कन्वर्ट कर दिया जहां से आज के डे में सिर्फ असेंबली लाइन ही बदलनी थी, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। आज के डे में वहां से टियागो, टीगोर एंड नेक्सॉन ये सब गाड़ियां आ गई, और आज के डे में पैसेंजर कार व्हीकल में पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा का नाम धीरे धीरे आ गया। और ये जो नई एक हैरियर एंड नया एक और लॉन्च होने वाला है 7 सीटर हैरियर जिसको बोलने में चित नॉलेज, नया जो कोड नेम दिया है अभी ग्रेविटास करके है, मे बी वही नाम रहे या चेंज होगा, और वो आके मार्केट में आज के डे में। तो उसने उसको पता था कि ठीक है मे बी, क्योंकि जब उसने बोला था कि मैं $2000 या मतलब 1 लाख में मैंने लखटकिया कार दूंगा, तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये वो बोले थे कि अरे यार ये टाटा क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहा। इतना हाइप क्रिएट हुआ और लाखों लोगों ने बुक कराई, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने मार्केट में नहीं ला पाया। देन उसके कारण जो है उसके साथ वो चीज प्रॉब्लम हुई, और वो तो चीजें ऐसी होती है। तो आप जो है उतने ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप एफोर्ड करो, टाटा ने उसको एफोर्ड कर लिया उसके लाभ को। द थर्ड प्रिंसिपल इज नोन एज ए क्रेजी क्विल्ट, दो नाम है इसके, वन इज नोन एज ए क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज पैच वर्क क्विल्ट। दोनों सेम है, एक ही नाम को पैच वर्क एंड क्रेजी, कहीं कहीं पे वी आर यूजिंग क्रेजी क्विल्ट और कहीं कहीं पे वो। तो यहाँ पे देखो बेसिकली create an expanding network of self-selected stakeholders, each of whom commit only what he or she can afford to lose. Means अब आप देखिए कि इस ये जो थर्ड प्रिंसिपल का रिलेशन में एफोर्डेबल लॉस से अगेन है। मतलब अगर आपका को फाउंडर है या आपका पार्टनर है तो उसे भी ये बताना होगा कि भाई हम अगर इस पे लूज कर सकते हैं तो क्या होगा। तो फोकस ऑन द पार्टनरशिप रादर देन ऑन कंपटीटर। इसके पहले मैं ये अफोर्डेबल लॉस पे एक सॉरी मैं एक केस बताना चाह रहा हूँ, कैफे कॉफी डे का। बेसिकली कैफे कॉफी डे जो है 1996 में स्टार्ट किया था उसने, उसका जो फाउंडर था, और नियरली जो है आज के मतलब जब वो फेल हुआ उसके पहले जो है मतलब 2018 की बात है, नियरली 1423 आउटलेट्स थे अक्रॉस द 209 सिटी इन इंडिया। बाद में उसको उसने 6 कंट्रीज में भी उसने वो किया था, और उसका टोटल जो है ईयरली जो है 1.6 बिलियन कॉफी एनुअली था। लेकिन फिर भी फेल हुआ वो क्यों फेल हुआ आप सबको पता है। उसके फाउंडर ने सुसाइड भी कर ली थी। उस फेल होने में 2-3 रीजन थे। 37 इयर्स का हार्ड वर्क था उसका उसके पीछे, और नियरली जो है उस कंपनी का 25,000 करोड़ का नेटवर्थ था, एंड नियरली टोटल वैल्यूएशन जो है 8,000 करोड़ था। उसकी दो चीजें हैं, लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में जब फेल हुआ, जब वो हुआ तो उसके ऊपर डेप्ट नियरली 6,000 करोड़ का था। तो 2-3 रीजन है उसमें। पहला एक रीजन था, अगर वो कंप्लीटली फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल पे रहता। आप सबको पता है कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में फ्रेंचाइज फीस सिर्फ देनी रहती है, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है जो फ्रेंचाइजी लेता है वो उसका रहता है। लेकिन यहाँ पे इसने जो है जब इसकी अगर देखा जाए विदाउट कैलकुलेटिंग द ग्रॉस मार्जिन, इसने क्या किया, अनऑर्गेनाइज जो है एक्सपेंशन शुरू किया, और इसने
एक मॉडल यूज किया विच इज नोन एज ए कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड, विच इज नोन एज ए कोको मॉडल। मतलब खुद वो ऑपरेट भी करती थी कंपनी और उसकी खुद की वो रिटेल रिटेल स्टोर भी था, मतलब कॉफी शॉप जो बोल सकते हैं। दूसरी एक गलती उसने एक और की कि अनऑर्गेनाइज एक्सपेंशन की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक एग्जांपल था कि आप सबको पता है कि दिल्ली में कनॉट प्लेस जो है कितना बिजी जगह है। ऑलरेडी वहां पे 3-4 जो है उसके रिटेल आउटलेट्स थे, लेकिन उसने क्या किया, उसको 3-4 से बढ़ा के 8 से 10 कर दिए थोड़ी थोड़ी जगहों पे। अब क्या हुआ कि जब तक 3-4 थे तो कस्टमर्स काफी आते थे और ठीक ठाक प्रॉफिट जो है निकलता था। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नो डाउट रहेगा ही, कनॉट प्लेस जैसे जगह पर रेंट और ये सब चीजें कितनी ज्यादा होती हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं। बट जब उसने उसको 8 से 10 किया तो क्या हुआ कि कस्टमर तो, आप सबको पता है कि नॉर्मल कॉफी नहीं है, मतलब स्टारबक्स इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो आप कॉफी जो 10 या 15 या 20 रुपए में आप कॉफी शॉप पे लेते हो वो चीज नहीं थी वहां पे, क्योंकि उसने कॉपी तो वही किया था, स्टारबक्स का ही बिजनेस मॉडल। वो एक्चुअली ऐसा एम्बियंस देना चाहता था कि लोग अपने कस्टमर से मिल रहे हैं, आके अपना 2 घंटे 4 घंटे अपना लैपटॉप लेके अपने कस्टमर से बातें करते हैं और कॉफी पीते हैं और जाते हैं। बहुत लोगों के ऑफिस के खर्चे बस स्टारबक्स और कॉफी कैफे सीसीडी विच इज नोन एज सीसीडी ने कम कर दिए थे, या मैक्सिमम जगह मीटिंग यही होती थी। वो दिक्कत क्या हुई, उसके ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस थे लाइक आउटलेट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी और फूड वेस्ट, वो जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और कस्टमर्स के प्रॉफिट मार्जिन कम होती गई। और जबकि आप सबको पता है कि 2015 में उसने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया था, बट स्टिल वो फेल हो गया। और फेल होने के एक और रीजन मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स का, उसका जो ओनर फाउंडर है उस पर छापा पड़ा था, इनकम सब ने सब कुछ सीज कर लिया था। अदरवाइज अगर वो सीज नहीं करता, उसके शेयर्स बेच के वो चाहता तो 6,000 करोड़ जो है वो आराम से चुका सकता था अपने डेट को, लेकिन वो भी वो, तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सीसीडी ने अनऑर्गेनाइज एक्सपेंशन कर दिया। सेम यही चीज अगर आप लोग को याद होगा तो जेट एयरवेज का भी एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पे। एक समय ऐसा था कि 2005-6 में जब इसने सहारा के, सहारा जो उसको, सहारा से अपना सहारा वो प्लेन खरीदा था, बस प्लेन कह रहा हूँ, कंपनी खरीद ली थी नियरली कुछ 5 या 600 मिलियन, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना था कि उस समय जब वो खरीदा था तो ये लोग बोलते थे कि काफी महंगी सौदा किया है नरेश गोयल ने जेट एयरवेज। अब प्रॉब्लम क्या आई इस जेट एयरवेज के साथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि वो अच्छा खासा वो प्राइवेट में नंबर 1 पे था, अच्छी सर्विसेज भी देता था। अगर आप लोग कभी गए हो तो उसमें आज का जो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट जैसा नहीं है कि मतलब लोग एक दूसरे से, मतलब उसकी सीट अच्छी खासी थी, इवन आगे जो बिजनेस क्लास भी हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसके कंपटीटर इंडिगो, गो एयर एंड स्पाइस जेट्स आए, जो कि नॉन एज ए लो कास्ट एयरलाइन, इन्होंने उस रूट पे भी स्टार्ट किया जहाँ पे जेट एयरवेज जो है नहीं जाता। नॉर्मली उस समय जेट एयरवेज जो मेन मेन रूट थे दिल्ली मुंबई, मतलब सभी मेजर सिटीज को, अगर 10-15-20 सिटीज हैं या जिनको वो कवर करता था, या 20 की जगह 30 भी मान सकते हैं। बट इन लोगों ने छोटे छोटे रूट पे स्टार्ट किया जहाँ पे कि प्लेन चलते ही नहीं थे, और उसका वो हुआ कि जेट एयरवेज को नंबर ऑफ प्लेन बढ़ाने पड़ गए उनको compete करने के लिए, और जो स्टैंडर्ड था वो मेंटेन करना था, और वो मेंटेन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे इनको कंप्यूटर के कारण अपनी कॉस्ट जो है टिकट की प्राइसिंग भी कम करनी पड़ी। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ जेट एयरवेज का, आपको बताने की जरूरत नहीं, फेल हो गई वो कंपनी। आज के दिन में लोग नरेश गोयल का मिसमैनेजमेंट भी बोलते हैं या जो कुछ भी बोले,
लेकिन उनका ये कंडीशन हो गई थी कि उनको प्लेन्स तो थे, उनको ऑपरेट करने के लिए उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी। और वो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी भाई? नॉर्मली सीसीडी ने भी यही किया था। सीसीडी क्या करता था, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेता था। ये कभी नहीं करना है। अगर ये हम करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे हम जो है डेप्थ हमारी बढ़ती जाए। तो हम इंडिविजुअल हो या एक कॉर्पोरेट है या एक इंटरप्राइज हो, हमें जब भी ऐसा नहीं है कि हमें एक लोन चुकाने के लिए हम दूसरे लोन लेते जाए। तो यहाँ पे बेसिकली एफोर्डेबल लॉस में ये दोनों एग्जांपल बहुत फिट बैठते हैं कि दोनों ने कैलकुलेट नहीं किया अपने डाउन साइज रिस्क को कि हमें कितना हम कर्ज लेंगे और कितना वो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बना रहेगा। थर्ड वन इज क्रेजी क्विल्ट। इसमें बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया था। The effectuation logic also include the principle of entering into the collaboration and partnership in order to bring न्यू रिसोर्सेज। ये वर्ड आपका यहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम पार्टनरशिप सिर्फ ऐसे नहीं, फाइनेंशियली पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं हम, टू ब्रिंग ए न्यू रिसोर्सेज इनटू द प्रोजेक्ट। एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्रेजी क्विल्ट emphasize the value of collaborating with the various types of partners who are willing to commit rather than searching for a potential partner who might be available or motivated। मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑलरेडी जो है वैसे पार्टनर ढूंढने हैं जो कि जिसका कमिटमेंट हो, जिसकी एथिक्स हो, और प्लस वो अपने जैसा ही अगर लॉस अगर हो रहा है तो उसे लॉस करने की कैपेबिलिटी भी, मतलब लॉस डाउन साइड रिस्क को जो हम सॉक कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें एटलीस्ट। Next, when engaging with the new partner with different and surprising perspective, one must be open for letting a project change direction as a result of these new partners। अब बहुत सारे इसके पार्टनरशिप के एग्जांपल्स हैं। इस पार्टनरशिप के एग्जांपल्स में अगर मैं आप लोगों को एक एसबीआई का एक कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड, जो आईआरसीटी से पार्टनरशिप किया हुआ है, उसमें बहुत सारे वो आते हैं। आईसीआईसीआई के कुछ कार्ड हैं जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से टाई अप किया हुआ है कि किसी भी आउटलेट से आप भराओगे तो उसमें वो नहीं। तो पैचवर्क फील्ड के जो है बहुत सारे एग्जांपल हैं। और पार्टनरशिप की एक सबसे वो देखा जियो के कारण जो है, आपको पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया दोनों को मर्ज होना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे वो चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ती है। इसमें इस एग्जांपल से, ये एक रियल एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बेसिकली पैचवर्क क्विल्ट। Ron and Amay were doing the reasonably good with their tax consulting service venture, to which they had also added an income tax payment gateway. They integrated their own tax consulting service with an HR services firm into a common portal, and the integrated services become a blockbuster in no time। उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया। दे इंटीग्रेटेड देयर ओन टैक्स कंसल्टिंग सर्विस विथ एन एचआर सर्विस। इस पर अगर एक और एग्जांपल याद आता है, पहले इसको मैं खत्म कर लूं। बिकम ए ब्लॉकबस्टर विच प्रिंसिपल इफेक्चुएशन इज डिस्प्ले हियर मींस क्रेडिट। आपको अगर देखा जाए तो टीसीएस नॉर्मली, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, सिर्फ टीसीएस नहीं, मैं टीसीएस का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आपको हायर करता है तो आपका बैकग्राउंड चेक करता है। तो टीसीएस भी एक बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसने आउटसोर्स कर रखा है एक कंपनी, और वो पूरा जाके उस पर्टिकुलर जो आपका एम्प्लॉय उसके घर जाके जैसा भी है करके पूरा बैकग्राउंड चेक करके
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मीन्स इसका यहाँ पे पैचवर्क बिल्ड का यही मतलब है कि जो स्किल आपके पास नहीं है अगर सामने वाले के पास है तो गो फॉर ए फॉर्म द पार्टनरशिप। दिस इज नथिंग बट ए क्रेजी क्विट। अब आप लोग नेक्स्ट जो है विच इज नोन एज ए लेमनेड प्रिंसिपल। यहाँ पे मतलब वो ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि अ, आप अपनी कंटीजेंसीज को कैसे लिवरेज करो, और बहुत सारे मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी का मैंने पूरे एग्जांपल आपको बता दिया कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट में चेंज किया, फेसलिफ्ट मॉडल लाए, फीचर्स बढ़ा दिए। और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, मैं एक भूल गया था कि निसान ने अभी हाल फिलहाल में एक महीने के, हाँ एक महीने पहले एक बी सेगमेंट की एसयूवी लॉन्च की, विच इज नोन एज निसान की मैग्नाइट। और उसका जो सबसे बड़ा जो है अगर यूएसपी बोला जाए या फिर उसका वो, तो उसकी प्राइस है, आपने देखा होगा कि 4.99 लाख एक्स शोरूम पे उसकी जो लोअर मॉडल है वो एसयूवी आपको मिल रही है, जिसमें कि 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है और 72 bhp देता है। थोड़ा सा लगेगा कि 1 लीटर एक एसयूवी में थोड़ी सी में भी हो सकता है कि टॉर्क कम लगे आपको, कूलिंग पावर का थोड़ा, लेकिन आज के दिन में रोड पे किसको, और वो आज के दिन में इस सिर्फ इस कंपटीटिव प्राइस पे आज के दिन में ये कंडीशन हो गई कि 2 to 4 मंथ की वेटिंग हो गई, स्पेशली वो जो सबसे लोअर मॉडल है वो। उसके पास 1 लीटर का टर्बो भी है एंड 1 लीटर टर्बो के साथ सीवीटी भी है, लेकिन जो आपका जो बेस मॉडल है जिसमें 1 लीटर का मैनुअल गियर के साथ उसने निकाला, तो उसकी प्राइसिंग 4.99 एक्स शोरूम में तो कुछ हैचबैक भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे बी सेगमेंट की 5 सीटर एसयूवी मिल रही। तो अब उसकी वो है कि आज के दिन में वो तीनों शिफ्ट अपनी स्टार्ट कर दिया है और उसकी प्लानिंग यहाँ से एक्सपोर्ट करने की भी चल रही है। तो यहाँ पे यही है कि बी ओपन टू द सरप्राइजेज एंड लिवरेज देम। शायद निशान ने भी नहीं सोचा, आप सबको पता होगा कि इंडियन ऑटोमोबाइल में निशान का क्या रोल है आज के दिन में, पता नहीं 5वें 6वें नंबर पे आता होगा। तो be open to surprises and leverage them. Treat them as a useful input rather than the hindrance to be avoided. कोई भी जो है hindrance जो है आपको अवॉइड नहीं करना है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटीज लेना है। दिस इज नोन एज ए लेमनेड प्रिंसिपल। Expect the surprises and welcome contingencies. It is in the unexpected consequences that opportunities arise. With this mindset, you leverage on the surprise situation. तो हमेशा आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ऑलवेज वेलकम द कंटीजेंसी। और इस पे एक कोड भी बोला जाता है, नॉर्मली आर्मी में ये वो होता है कि एक बार जो है आर्मी के कमांडिंग अफसर को उसके जवानों ने बोला कि सर हमारे दुश्मन की सेना जो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो कमांडिंग अफसर ने बोला कि ये तो और बढ़िया है कि एटलीस्ट आपके पास अब चारों हर डायरेक्शन में आपको फायर करने की वो है। तो ऐसे हमें अपनी कंटीजेंसीज को लिवरेज करना है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ से घेर लिया, हम डर के अपने हथियार डाल दें और सामने वाला हमें गोली मार दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। वी गो फॉर ए, हम चारों तरफ घूम के फायरिंग करो, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर आपके पास सिचुएशन है। तो और नो डाउट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सरप्राइजेस तो आने ही हैं। ऐसा सोच लें कि नहीं बिना सरप्राइजेस या बिना किसी हिंड्रेंस के या बिना किसी उसके हमारा स्मूथ चलेगा बिजनेस और मेरा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बिकता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई इन प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ी वैल्यू है।
इसमें एक एग्जाम्पल है कि इन अर्ली 1950s जोसेफ मैकविकर, हेड ऑफ द कुटोल प्रोडक्ट कंपनी, created doggy clay to remove the soot in a coal burning home. नॉर्मली वहां पे यूज होते हैं. People stop buying it when people switch from coal to gas. आप सबको पता है कि coal to gas चेंज हुआ तो काफी कुछ चीजें, इवन जब हम गैस पे शिफ्ट हुए तो बहुत सारे इंडिया में भी बॉयलर जो है कोल से गैस बेस्ड हो गए और इलेक्ट्रिक भी हो गए आज के दिन में. तो वहां पे उसकी ये कंडीशन थी कि जब लोग उससे क्ले लेना बंद कर दिए, देन कुटोल देन स्टार्टेड सेलिंग इट एज ए मॉडलिंग क्ले फॉर द चिल्ड्रेन. उसने देखा कि ठीक है, वहां लोगों ने लेना बंद कर दिया घर में जलाने के लिए, लेकिन वो एज ए चिल्ड्रेन को यूज हो सकता है. अब विच टर्न आउट टू बी ए सक्सेस. एंड विच प्रिंसिपल ऑफ एफेक्टिवेशन डू यू थिंक टू मैटर? नो डाउट लेमनेड प्रिंसिपल. और लेमनेड के तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि मतलब कंटीजेंसी में कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या वो किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हाँ, मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये आपको समझ में भी आ जाएगा. ये मिरेकल ऑफ द हडसन प्लेन क्रैश. आपको पता होगा कि हडसन नदी में एक ये प्लेन क्रैश हुआ था, इस पे मूवीज भी है. अरे सॉरी, ये लेमिनेट का नहीं है, इसका है, ये पायलट इन द प्लेन का है. हाँ, तो पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल, ये जो लास्ट प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है कि को क्रिएट द फ्यूचर विथ थिंग्स विद इन योर कंट्रोल एंड विथ सेल्फ सेलेक्टेड पार्टनर. मीन्स अब यहाँ पे अगेन देखो कि आपको क्या करना है कि फ्यूचर को अपने कंट्रोल में रखना है. और सेल्फ सिलेक्टेड पार्टनर ये कहाँ से आया? पैचवर्क फील्ड से. मतलब ईच एंड एवरी अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल एक दूसरे से रिलेटेड. इसको मैं एलाबोरेट करता हूँ, देन इस पे आता हूँ मैं. Effectuator believe that the future is not something you can or even should attempt to predict. एग्जैक्ट, एकदम सही है कि चीजें आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. द फ्यूचर इज इंस्टेड समथिंग यू ट्राई टू कंट्रोल, या तो आप कंट्रोल कर सकते हो. विथ दिस पर्सपेक्टिव फॉलो दैट योर फोकस इज ऑन एक्टिविटी दैट इज विद इन योर कंट्रोल. तो आपको हमेशा वो एक्टिविटी फॉलो करना है जो आपके कंट्रोल में है. एंड विथ दिस अप्रोच द एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर अचीव द आउटकम दे डिजायर. तो ये आपका जो है अप्रोच रहा कि ऑलवेज जो है आप अपने स्टीयरिंग अपने हाथ में रखोगे, कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे, तो नो डाउट आपके आउटकम्स ऐसे ही आएंगे जैसा आप चाहते हो. हाँ, जो स्टार्ट द सेलिंग स्ट्रॉबेरी जैम मेड फ्रॉम द सरप्लस स्ट्रॉबेरी, soon the popularity of his jam increases. उसने स्टार्ट किया एक उसके पास सरप्लस स्ट्रॉबेरी थे, उससे जैम स्टार्ट किया उसने बनाना, और बहुत जल्दी जो उसको पॉपुलरिटी मिल गई. जो स्पॉट ए बिग अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट ए स्मॉल फैक्ट्री टू मेक द जैम अ नेशन वाइड ब्रांड. विच एफेक्चुएशन प्रिंसिपल इज जो यूजिंग हियर. उसने स्टार्ट कर दी फैक्ट्री, अपने कंट्रोल में चीजें रखा. दिस इज नथिंग बट ए पायलट इन द प्लेन. अब पायलट इन द प्लेन में ये जो है, ये स्टोरी बहुत जरूरी है कि मिरेकल ऑफ द हडसन प्लेन क्रैश में बेसिकली यहाँ यही था कि उस पायलट ने जो टेक ऑफ किया प्लेन, कुछ बर्ड्स आ गए और बर्ड्स के कारण जो है उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई है. इमीडिएटली जो है उसको, और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि फिर से वो लैंड करे आके रहने का. तो उसको उस समय वहां पे ये दिखा, ये नदी दिखी, और उसने कुछ
एक भी आदमी मरा नहीं है, और कुछ 110 जो है लोग इंजर्ड हुए थे, वो भी काफी थोड़े बहुत, और पूरी की पूरी जो है प्लेन को वो नदी में मीन्स ये इसका ये है कि आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो चीजें आप ऐसी ही एक्टिविटी अपने रखो जिससे कि स्टेयरिंग आपके कंट्रोल में। तो ये बेसिकली जो है ये 5 प्रिंसिपल हैं। एक बार मैं फिर से समराइज यहाँ पे कर देता हूँ एक ही जगह में। बर्ड इन हैंड, स्टार्ट विथ योर मीन्स, जो आपके पास हु एम आई, व्हाट आई नो एंड whom I know, इस पे रहो। सेकेंड वन इज द अफोर्डेबल लॉस, फोकस ऑन द डाउन साइड रिस्क, या फिर आप उतना ही ईच स्टेप पे उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप अफोर्ड कर सको, उसको लूज कर रहे हो। लेमनेज इज नथिंग बट लिवरेज द कंटीजेंसी। फोर्थ वन इज द पैचवर्क क्विल्ट, जहां आपको जरूरत लग रही है, आप जैसे कमिटेड और हार्ड वर्कर अगर पार्टनर्स मिल रहे हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, देन फॉर्म द पार्टनरशिप। एंड देन लास्ट वन इज पायलटिंग द प्लेन, कंट्रोल वर्सेस प्रेडिक्ट। तो ये बेसिकली, अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, एंड कुछ लोगों ने रेज किया है हैंड को। हाँ, सौरभ, सौरभ नागरोट्रा एंड यस जायसवाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। संजय जठार सर, कुछ चैट बॉक्स में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में? हेलो। Hello, there is no question in the chat box right now, sir. But if अच्छा, anybody wants to ask any question, they can also put it in the chat box. If any doubt is there, any question is there, they can put it in the chat box. I think no further, no questions are there. Anybody with any question? Sir, should we end here? Hello. Hello, sir. हाँ संजय सर, वो आपने फीडबैक फॉर्म आपने वो हाँ, कर दिया है? वो चैट बॉक्स में मैंने फीडबैक फॉर्म की लिंक डाल दी है, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कॉपी इट एंड फिल इट। फीडबैक सभी को भरना है जो अटेंड कर रहे हैं। तो हाँ, अर्पित, प्रवीण लिखित कर, हाँ आप लोग यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अर्पित जैन, प्रवीण लिखित कर, यश जायसवाल एंड सौरभ। सर, इनको अनम्यूट करने की परमिशन है कि नहीं है, ये पहले देखना पड़ेगा। परमिशन तो अपन मतलब कर सकते हैं अनम्यूट। एनीबडी किसी को क्वेश्चन पूछना, प्लीज ट्राई टू अनम्यूट। हेलो सर, मेरे पास में चैट पे नहीं है फीडबैक की लिंक। फीडबैक की लिंक सर प्राइवेट चैट पे कैसे मतलब प्रोवाइड होगी? हम लोगों को मिल ही नहीं रही है सर, नहीं आई है हमारे पास अच्छा में। सर, प्राइवेट चैट पे न डाल के संजय सर उसको पूरा एवरीवन, फॉर एवरीवन करिए, उसको फिर से कॉपी करके आप फॉर एवरीवन करिए। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। उस आपके फीडबैक फॉर्म में हमने दो कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग जरूर भरिएगा कि
इन फ्यूचर आप किस टॉपिक पे आपको वेबिनार चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मतलब इंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपको जरूरत लग रही है, मतलब आप वेंचर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आइडिएशन से आगे बढ़ गए हो, आप अपना मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना लिए हो या अपना ये लीन सेंड कर दिया मैंने फिर से। हेलो, हाँ ये लिंक ओके फिर से सर। शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, तो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। हाँ सौरभ, मिल गया क्या अब? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके। तो मेरा मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुन लो आप। उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं कि इन फ्यूचर आप कौन से टॉपिक सुनना चाह रहे हो और कौन से रिसोर्स पर्सन आपको चाहिए, जिससे कि आपका ये जो मतलब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना इंटरप्रेन्योरल जर्नी, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा आप लोग जरूर उसको, वो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका फीडबैक जरूर आना चाहिए कि, और प्लस नो डाउट जो मेरा फीडबैक है वो तो आपको बताना ही है, और ट्राई करिए कि आप फेयरली बताएं। तो मेरा ये बस एक ही है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, या तो सबको समझ में आ गया, या अगेन वही एज यूजुअल जो क्वेश्चंस रहते हैं, सबको समझ में आ गया ऐसा लग रहा है, या अभी कुछ भी नहीं समझ में आया। वो डिपेंड करता है फीडबैक पे। और इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रह गया या कहीं कुछ भी डाउट है, तो ऑलरेडी जो है मैं अपना मेल जो है आप हाँ, लोगों मेल को एड्रेस। आपको शेयर कर देता हूँ। उस मेल एड्रेस पे आप जो है आप इस मेल एड्रेस पे ramjanm.singh@medicaf.ac.in पे आप कुछ भी है वो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को। और ये सोचिए कि ये पांचों प्रिंसिपल जो हैं एक साथ यूज करना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को या किसी 2 को यूज करके आप स्टार्ट योर जर्नी। नहीं, पांचों को आपको एक ही साथ यूज करना है, एंड देन जो है उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। So should we हाँ end, सर, Ramjanam sir? हाँ स्टार्ट कर, मतलब वो कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ये लोगों ने Okay, okay. फीडबैक फॉर्म तो ले ही लिया होगा। Okay, so before we end this webinar, uh, let us go through the vote of thanks. Good afternoon to one and all. It was really a wonderful session for all of us, very informative, and was a very wonderful session. Before we close, it's time to acknowledge the efforts of all those who contributed to this webinar. Actually, today we came across an important concept called effectuation. Well, all of us have heard the word effect, but I think many few of us were familiar with this word effectuation. As per the dictionary meaning, effectuation means to do something or make something happen. But when we apply it to entrepreneurship, it takes different meaning. Professor Ram Janam Singh described the concept of effectuation and its principle in a very effective way. He elaborated the 5 principles of effectuation like bird in hand, affordable loss, lemonade, patchwork quilt, and pilot in plane very well by giving many practical examples. I hope you might have understood, though not fully, but to some extent at least. Thanks, Professor Ram Janam sir, for this wonderful session. My heartful thanks to Honorable Vice Chancellor Dr. Sunil K. Somani, a renowned name in technical education, uh, for his guidance and motivation that always help us to organize such events. His vision inspires us to work hard consistently.
I also thank Dr. Pradyuman Yadav, Registrar Medicare University, for all-round support, which led to smooth conduction of this webinar. I also thank Dr. Sarita Kansal, Head Medicare Incubation and Innovation Cell, for all her support to organize this webinar. I also thank all the members of MIIC for their support to conduct this webinar. I would also like to thank members of the supporting team, Mr. Surikant Soni, Ms. Amrita Mantri, and Mr. Gajendra Singh for their back-end support as always. And at the last, I would like to thank all the participants who actively participated in this event to make it a success. I hope all of you have got a broader meaning of this one word effectuation and how important it is to apply in a business or a startup. So with the request to all of you to give a thought to take up entrepreneurship as a career option, I come to the end of this vote of thanks. Thanks, Professor Ranjanam sir, once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So we close this webinar. All of you have copied the link. I hope all of you have copied the link of the feedback. And with that, I'm ending this, closing this webinar.